Hello dear students, most welcome to all of you in the class of English, and in today's video we are going to attend the second part of chapter number 4, Bipin Chaudhary's Lapse of Memory. Dear students, earlier we have come to know that Mr. Bipin Chaudhary suddenly was going to purchase some books from a bookshop, and he saw a person named Parimal Ghosh who was standing at the gate, very close quarter, and just he was saying that one day he went to Ranchi and so many things happened with him, and Mr. Bipin Chaudhary was denying that he was knowing that person, but that person was instructed on to make himself clear that he was knowing that person. Now students, you will try to understand how does he try to outwit Mr. Bipin Chaudhary. Let us try to find and what kind of things can help Mr. Bipin Chaudhary to find out the information about his tour to Ranchi. So students, let's try to begin the second part. Bipin Babu's car was safely parked in Butram Street by the Lighthouse Cinema. He told the driver as he got into the car, "Just drive by the Ganga. Will you, Sitaram?" Driving up the Strand Road, Bipin Babu regretted having paid so much attention to the intruder. He had never been to Ranchi. Students, what happens over here कि अपने ड्राइवर से वो कहते हैं बैट्रम स्ट्रीट में पार्क करने के लिए लाइट हाउस सिनेमा के पास, एंड व्हाट हैपेंस कि वो ड्राइवर से बोलते हैं कि चलो गंगा की तरफ चलते हैं। वो कहते हैं कि चलो गंगा की तरफ चलते हैं सीताराम से। अब व्हाट हैपेंस कि स्ट्रैंड रोड की तरफ बढ़ते हुए बिपिन बाबू को काफ़ी रिग्रेट होता है, काफ़ी पश्चाताप होता है कि वो सोचते हैं उस इंट्रूडर के बारे में जो अचानक बुक्स के शॉप पे घुस आता है और ये बातें कहता है क्योंकि राज्य के बजट के बारे में। नो क्वेश्चन अबाउट इट, इट वॉज इनकंसेवेबल, दैट मीन्स कि इस पर विश्वास नहीं कर सकते, ये बहुत ही दैट ही शुड फॉरगेट सच एन इंसिडेंट विच टुक प्लेस ओनली 6 or 7 years ago, मतलब कि वो उस इंसिडेंट को नहीं भूल सकते जो 6 या 7 साल पहले हुआ हो कि वो रांची गए हैं। ही हैड एन एक्सीलेंट मेमोरी अनलेस बिपिन बाबूज हेड रील्ड, नहीं तो क्या होता कि बिपिन बाबू का जो हेड है वो रील मतलब घूम जाता है पूरा। Now let's see the next paragraph, page number 63. Was he losing his mind? But how could that be? He was working daily in his office. It was a big firm and he was doing a responsible job. He wasn't aware of anything ever going seriously wrong. Only today he spoke for half an hour at the important meeting, and yet. So what happens friends? एक बड़ा फॉर्म चला रहे हैं, क्या अपना वो माइंड लॉस करने जा रहे हैं? ये कैसे हो सकता है? क्योंकि a person who is running a big firm, and he is a responsible person, so how can he forget such a big thing? Only whatever you can say कि एक उनका जो मेमोरी पावर, पहली चीज़ फर्स्ट थिंग इज दैट कि जो उनका मेमोरी पावर बहुत ही स्ट्रांग था और हर एक बातें वॉट एवर द इम्पॉर्टेंट मीटिंग्स वर देयर ही यूज्ड टू कीप इन हिज माइंड, and yet the man knew a great deal about him. How? He even seemed to know some intimate details. The bag of books, wife's death, brother's insanity. The only mistake was about his having gone to Ranchi. मतलब कि वो आदमी इतना इंटीमेट, इतना घनिष्ठ, इतना पर्सनल डिटेल्स उनके बारे में जानता है और इतनी बड़ी जानकारी he has about Mr. Bipin Babu. Only one thing was missing, that कि I have been to Ranchi. मतलब सिर्फ एक चीज़ मिस होती कि रांची गए थे, क्योंकि उनके वाइफ का डेथ होना, बुक्स को रखना और भाई की पागलपन, सारी चीज़ें उसे याद है, वो सही बता रहा है, बट एक चीज़ प्रॉब्लम है कि मैं रांची गया था। नॉट अ मिस्टेक और डेलिबरेट लाई, एक मिस्टेक नहीं है कि जानबूझ के बोला गया झूठ। इन 58 ड्यूरिंग द पूजा ही वॉज इन कानपुर एट हिज फ्रेंड्स हरिदास बागचीज प्लेस, मतलब कि 58 में वो पूजा करने के में कानपुर में अपने फ्रेंड्स हरिदास बागची के यहाँ पूजा में गए थे। ऑल बिपिन बाबू हैड टू डू वॉज राइट टू नो, देयर वॉज नो वे ऑफ राइटिंग टू हरिदास, मतलब क्या चीज़ था कि उनको ये लगा कि शायद उन्हें हरिदास को लिखना चाहिए कि वाकई में क्या मैं वहाँ था कि नहीं था। बिपिन बाबू सडनली रिमेंबर्ड दैट हरिदास हैड लेफ्ट with his wife for Japan some weeks ago and he didn't have his address. क्या याद आता है कि बिपिन बाबू ने वाइफ के साथ जा चुके हैं जापान और उनके पास उनका एड्रेस नहीं है। But where was the need for proof? He himself was fully aware that he hadn't been to Ranchi, and that it is very clear students कि वो उन्हें खुद पता है कि वो रांची नहीं गए थे और ये बात बहुत ही क्लियर है।
द रिवर ब्रीज वॉज ब्रेसिंग दैट यू कैन से कि हवा चल रही थी बड़े अपने एक मनमोहक अंदाज में। एंड येट अ स्लाइट डिस्कम्फर्ट लिंगर्ड इन विपिन बाबूज माइंड, थोड़ा सा एक छोटा मोटा जो डिस्कम्फर्ट होता है वो उनके माइंड में चिपक जाता है। अराउंड हेस्टिंग्स विपिन बाबू डिसाइडेड टू रोल अप हिज ट्राउजर्स एंड टेक अ लुक एट हिज राइट नी। वो अपना ट्राउजर उठाते हैं और दाएं घुटने की तरफ देखते हैं। There was a mark of an old inch-long cut. It was impossible to tell when the injury had occurred. मतलब एक लंबा 1 इंच का कट का निशान था और ये बता पाना असंभव था कि वो इंजरी कब हुई थी। Students, let's move to next page number 64. Had he never had a fall as a boy and cut his knee? क्या अभी ऐसा नहीं हुआ था कि उनका घुटना कभी कटा हो? He tried to recall such an incident but couldn't. मतलब घुटने के जो कटने की बात थी वो रिकॉल करने की कोशिश कर रहे थे बट कर नहीं पाए। Then Bipin Babu suddenly thought of Dinesh Mukherjee. The man had said that Dinesh was in Ranchi at the same time. The best thing surely would be to ask him. He lived quite near in Benindhan Street. What about going right now? But then, if he had really never been to Ranchi, what would Dinesh think if Bipin Babu asked for a confirmation? He would probably conclude Bipin Babu was going nuts. No, it would be ridiculous to ask him. क्या चीज़ था कि उन्हें याद आया कि दिनेश मुखर्जी जो उनका एक फ्रेंड था वो रांची गया हुआ था, वो बता सकता है कि रांची में गए थे कि नहीं गए थे। और लेकिन ये कि मतलब ये और ये था कंडीशन कि वाकई उसे पूछ लेना चाहिए। और ये भी क्लियर था कि वो पास में जो बेनिंदन स्ट्रीट है, बेरीनंदन स्ट्रीट, वो वहीं रहते थे। और फर्स्ट ऑफ ऑल कि ये चीज़ क्लियर हो जाएगी कि वो रांची गए थे कि नहीं थे। लेकिन ये पहली चीज़ है कि अगर वो कॉल करें दिनेश मुखर्जी को तो ये काफ़ी हास्यास्पद होगा कंफर्मेशन करने के लिए। लेकिन शायद कॉल नहीं करना चाहिए। लोग क्या ये कहेंगे कि लगता कि बाबू का दिमाग खराब हो गया है। एंड ही न्यू हाउ रूथलेस दिनेश सार्केज़म कुड बी। और इन्हें पता है कि जो दिनेश मुखर्जी का जो उपहास है कितना रूथलेस होता है। Sipping a cold drink in his air-conditioned living room, Bipin Babu felt at ease again. Such a nuisance, just because they have nothing else to do. They go about getting into other people's hair. मतलब अब वो अपने एयर कंडीशनर रूम में कोल्ड ड्रिंक पी रहे थे और थोड़ा सा ईज फील कर रहे थे। लेकिन क्या कहना है कि वो क्या उत्पात का एक रीज़न आ गया सामने और उनके लिए कुछ करने की चीज़ें होती भी नहीं हैं। और मतलब कि इन लोग के दिमाग में होता क्या है। After dinner, snuggling in bed with one of his new thrillers, Bipin Babu forgot all about a man in New Market. मतलब कि जैसे ही वो डिनर करने के बाद से बेड पर जा रहे थे और अपनी रोमांचकारी पुस्तकें पढ़ रहे थे, वो नए आदमी के बारे में भूल गए। Next day in the office, Bipin Babu noticed that with every passing hour, the previous day's encounter was occupying more and more of his mind. If the man knew so much about Bipin Babu, how could he make such a mistake about the Ranchi trip? मतलब स्टूडेंट्स कि जैसे ही वो अपने ऑफिस में गए, हर टाइम पास कर रहे थे, अचानक क्या होता है कि वही इवेंट जो आदमी का जो इंट्रूडर का था, जो उनसे बुक की दुकान पे मिल गया था, फिर माइंड में चला आया। और वो ये सोच रहे थे कि आदमी के पास इतनी जानकारी है, लेकिन ये जानकारी कैसे वो मिस्टेक कर सकता कि मैं रांची गया हुआ था। Just before lunch, Bipin Babu decided to ring up Dinesh Mukherjee. It was better to settle the question over the phone. At least the embarrassment on his face wouldn't show. अब उन्हें क्या लगा कि जैसे ही लंच का टाइम आया, उन्हें याद आया कि अब उन्हें दिनेश मुखर्जी को फ़ोन कर लेना चाहिए। ये मामला सेटल करने का बेस्ट साधन होगा इस चीज़ का। और भले ही उनके चेहरे से जो लज्जा जो बन रही थी वो हट जाएगी। 235616 Bipin Babu dialed the number. Hello, is that Dinesh? This is Bipin here. Well, what is the news? I just wanted to find out if you recall an incident which took place in 58. बस मैं ये पूछना चाहता हूँ कि क्या तुम रिकॉल कर सकते हो ये घटना जो 58 में हुई थी। 58? What incident? Were you in Calcutta right through that year? That's the first thing I have got to know. क्या तुम कलकत्ता में थे उस दिन जो है कि ये पहली चीज़ मैं जानना चाहता हूँ। वेट जस्ट अ मिनट। 58, जस्ट लेट मी चेक इन माई डायरी। फॉर अ मिनट्स देयर वाज साइलेंस। बिपिन बाबू कुड फील दैट हिज हार्ट बीट हैड गॉन अप। ही वाज स्वेटिंग अ लिटिल। थोड़ा शांति थी तो बिपिन बाबू को ये लगा कि उनका जो हार्ट बीट है जो काफ़ी तेज हो चुका है और पसीना बह रहा था। हेलो, यस आई हैव गॉट इट।
I had been out twice. Where? Once in February nearby to Krishnanagar to a nephew's wedding, and then, but you know about this one, the trip to Ranchi. You were there too. That's all. But what's all the sleuthing about? मतलब क्या था कि एक बार फरवरी के महीने में नियर बाई मैं कृष्णानगर के पास गया था भतीजे की शादी में, और दूसरा जो गया था कि हाँ वो जो रांची का ट्रिप था मैं वहाँ गया हुआ था, और शायद तुम भी तो थे, ये पूरी बात है. एंड बट व्हाट्स ऑल इज स्लूथिंग अबाउट, मतलब इसमें पूछताछ की क्या बात है. नो आई जस्ट वांटेड टू एनीवे थैंक्स, बस मैं जानना चाहता था. Bipin Babu slammed the receiver down and gripped his head with his hands. He felt his head swimming. A chill seemed to spread over his body. There were sandwiches in his tiffin box, but he didn't eat them. He had lost his appetite. क्या होता, धड़ाम से बैठ जाते हैं, रिसीवर रख देते हैं, अपना सर अपने हाथ से पकड़ के बैठ जाते हैं, और लगता है उन्हें उनका जो हेड है वो स्विम कर रहा, घूम रहा हो. एक कहते हैं कि पूरा ठंडक उनके शरीर के चारों तरफ दौड़ जाती है, और उनके टिफिन में सैंडविच होता है बट उसे खाते नहीं है, वो अपना भूख ही नष्ट कर देते हैं, मतलब कि भूख उनकी मर जाती है. सो स्टूडेंट्स, होप यू अंडरस्टूड द लेसन. You will need to write answer of comprehension check question number 1, 2, 3 and 4. See you in next video with part number 3. Bye.